Hello dear aspirants. So let's analyze previous year questions today. So the thing is, what I told you in the previous lectures of mindset making is that we should not learn or try to read everything for the topic which is asked in the previous year question, right? So today's purpose of this session is we have to learn how to analyze previous year questions. Okay, so let's say there is a question, which one of the following correctly describes the meaning of legal tender, right? This is the first question. Legal tender money. Ab when you come on the options, the money which is tendered in courts of law to defray the fee of legal cases. Here one thing I will say, persons who are ना UPSC passionate, something like hero type ना, मतलब उनको जब पहली बार में जोश होता है ना जब वो UPSC लिखते हैं, तो ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है. पहला वाला ऑप्शन किसके लिए है कि लेस मनी मोर एक्सपेक्ट, लेस स्टडी मोर एक्सपेक्टेशन. उन्होंने देखा लीगल टेंडर मनी और सीधा मारा अच्छा लीगल मतलब कोर्ट, है ना, तुक्काबाजी. दूसरे वाले पर आते हैं, द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर अ कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स. अभी मैं इसको रोकता हूँ, थर्ड पर आता हूँ. द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. हाँ, जिन लोगों ने लीगल टेंडर मनी को एग्जैक्टली पढ़ा नहीं है, दे मे कंफ्यूज विद दिस स्टेटमेंट. सी, द मेटेलिक मनी इन द सर्कुलेशन इन अ कंट्री. तो मेटेलिक मनी और लीगल, ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से, बिकॉज लीगल टेंडर मनी है तो ओनली मेटेलिक मनी के बारे में तो बात नहीं हो रही होगी, राइट? नाउ the option B is correct, and what we learn by the analysis of this question itself, the thing is, if we have no idea about some term in economics, ध्यान से सुनिए, if we have no idea about any term in the economics asked in the question, terms based questions, then please don't guess that. It is very sure that you will come up with the wrong answer in the economics. So this is my analysis of this first question. What is that analysis? So when I was a student, what I was trying to do is, मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, फिर मैंने समझा कि कहाँ मैं गलती कर सकता था. फिर मुझे लगा कि जो मैंने आपके साथ बात बोली कि जब तक मैंने इस टर्म को पढ़ा नहीं है, मैं ब्लाइंड गैस यहाँ पर नहीं करूँगा. दिस इज यूपीएससी का एग्जाम, राइट? तो अब लीगल टेंडर मनी. नाउ थर्ड पॉइंट कम्स इनटू द एनालिसिस इज व्हाई दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द ईयर 2018 prelims, because this was the later period of demonetization, and if there was a like great big hue and cry over that. So legal tender, मोदी जी, मैंने कहा था ना रात के 8 बजे आए, लीगल मनी रही नहीं, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. So then they didn't ask in that particular year, but they asked further after 1 year the question about the legal tender. So it was, you can say, it was in the news for approximately 1.5 years, and they coined the term in your prelims question. So these are the 3 points which I learned from the analysis, and when I was an aspirant, तो मैं यही साइड में जिस पेपर पर मैं कर रहा हूँ, हार्ड कॉपी में इसका फोटो कॉपी निकाल लूँगा PYQs का एक साथ में, और यही नोट्स पर अपने साइड में लिख देता था व्हाट आई लर्नड और व्हाट आई ऑब्जर्व्ड थ्रू द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर? एंड फॉर फर्दर क्वेश्चंस आई विल यूज दिस एनालिसिस. फाइन, चलिए. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question with us is, consider the following statements. This the question asked in the CDS, right? So what I told you during the mindset making, that we have to keep an eye over CDS ka questions also, because that is again formed by the body UPSC. So we have to take care of those. Although this question I also discussed in the mindset making, that what they ask,
अब देखिएगा लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पर, जिन लोगों ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रखा है या जो इतने सारे सीरीज चल रहे हैं, व्हाट आई फाउंड एज एन एस्पिरेंट व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट, वो लोग क्या करते हैं ना आंसर पर, अच्छा ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, ऐसे करके एलिमिनेशन और इस टाइप की ट्रिक्स। अरे भाई दैट इज नॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस। ओके, एनालिसिस इज समथिंग डिफरेंट। Analysis is to catch the demand of the exam. So when I will analyze this question, I will first think why they asked this question. So they asked the question कि in India the minimum denomination coin acceptable for transaction is 50 paise. Coins below 50 paise is not a legal tender for payment. ठीक है, अब मेरे को पता क्या है, when अब देखो ये 2011 में दे आस्क द क्वेश्चन एंड सपोज दैट आई हैव बीन प्रिपेयरिंग इन द 2016, 17, 18 लाइक, सो देयर आई विल हैव एन आई ओवर कि यार ये लीगल टेंडर क्या होता है। बोलो होगा या नहीं, विश्वास दिलाइए इस चीज पर। अच्छा, अब इसमें मैं प्रैक्टिकल पे आऊंगा। पहला स्टेटमेंट मिनिमम डिनोमिनेशन, क्योंकि हम इतना मार्केट में रहते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, क्या हम जो पहले चवन्नी चलते थे या 25 पैसे 20 पैसे, वो तो अभी नहीं है मार्केट में। सो एक प्रैक्टिकल मेरा एक अनुभव है कि अच्छा चलो ठीक है, फर्स्ट तो मैं गैस कर सकता हूं कि कौन से पैसे मार्केट में हैं, कौन से नहीं हैं। When I come on the second statement, what I learned, what I analyzed through this statement, that whenever I am studying about the money, I should always concern about what is the legal or statutory backup of that money. Then I will learn about the legal tender also. So legal tender question they asked in 2011 for CDS, and the same thing they asked in the UPSC PYQ 2018. तो अगर मैंने पढ़ते टाइम 2016-17 में तैयारी करते टाइम इस वाले क्वेश्चन को एनालिसिस किया होता अच्छे से, तो मेरे को 18 वाले में भी पता रहता। यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। So today's the main concern for me is how to analyze PYQs. Okay, चलो, when I come on the third question, the question is, अच्छा ये तो हो गया, the term core banking solutions, right? अब देखो मैं इसको कैसे एनालाइज करूंगा। पहले I will underline the word core banking solutions. कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। आप यकीन मानिए इसके जो 3 वर्ड्स लिखे हैं, इन्हीं में इसका आंसर आपको मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड लगाएं उसके ऊपर। ठीक है, अब देखिएगा, इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ अ बैंक्स ब्रांचेस विच इनेबल्स कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट. It is an effort to RBI's control over commercial banks through computerization. It is a detailed procedure by which a bank with huge NPA is assets is taken. अब आप थर्ड के बारे में देखो, यहां पर अभी तक मैं कितना ही पढ़ाई कर लूं, ठीक है, आई कैन नॉट रिमेंबर बिफोर दिस एग्जाम कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। प्रैक्टिकल समझना इस चीज को। अब मैं क्या करूंगा कि ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मैं मतलब तो समझ रहा हूं, पिछले 1 साल की तैयारी के दौरान मैंने क्या क्या सीखा है, मैं उन चीज़ों को रिलेट तो कर सकता हूं, लेकिन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में थर्ड वाला स्टेटमेंट मुझे नहीं लग रहा है कि, क्योंकि एनपीए से रिलेटेड कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस में क्या है, क्योंकि यहां पर आरबीआई के कंट्रोल की बात हो रही है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो आई विल जस्ट फोकस ऑन द स्टेटमेंट 3। तो कुछ लोगों को ये लगेगा कि सर आप एलिमिनेशन को सपोज नहीं करते हैं क्या। मैं ये बोलूँगा कि एलिमिनेशन इज नॉट सम टेक्निक और समथिंग लाइक दैट, इट इज योर लर्निंग्स फ्रॉम द एनालिसिस। व्हेन यू स्टडी एनीथिंग थ्रू आउट द ईयर,
Actually, your intuition helps you in supposing or opposing something. So I am very much worried about the third statement, and I will look over the options. So third statement is available in 3 options, right? So if I exclude the option 3, I may land up with the option 1. Fine. चलिए, अब मैं वापस से अपने इस पर देखूं. इट इज अ नेटवर्किंग बैंक्स ब्रांचेस. अब बैंक्स के ब्रांच होंगे और इट इज एन एफर्ट टू आरबीआईज कंट्रोल ओवर द कॉमर्शियल बैंक्स थ्रू कंप्यूटराइजेशन. अच्छा, अब अगेन आरबीआई के कंट्रोल की बात हो रही है, यहां पर भी कंट्रोल की बात हो रही है, लेकिन मेरा एक जो इंट्यूशन है या हमारा जो इन 3 वर्ड्स कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, इसका मतलब सिर्फ मुझे इतना नजर आ रहा है कि ये कस्टमर्स या बैंकिंग पेनिट्रेशन या लोगों में बैंकिंग हैबिट्स कैसे डेवलप हो, शायद उसके लिए ये सॉल्यूशन हो सकता है, राइट? दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन फॉर मी. At this point of time, I am not bothered about what is the option A correct or option D correct or option B correct. I am only concerned about how I analyze this question. Now I will go on my class notes. I will read about core, यहीं पर ध्यान दीजिए आप. I will read about core banking solutions in my class notes, and I will figure out or I will cross check what the reasoning I was applying here that is correct or valid up to which extent. This is the way to analyze the things. You are getting my point or not? अब हमें क्या करना है, हमने सीधा उसका आंसर देखा, अपनी मेंटल एक्सरसाइज किए बिना और उसके आंसर को याद कर लिया. हमें लगता है कि सारे PYQs याद कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा. और कोरा पर मैं लगातार कई साल से लिख रहा हूं इस चीज को बार बार. आप अगर मेरे आंसर्स को पढ़ेंगे, मैं हर बार यही कहता हूं यार, टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जाम PYQs आर नीडेड. PYQs के हमें आंसर्स नहीं चाहिए, वी नीड एनालिसिस ऑफ द PYQ. And what I am trying to do here. चलो. So when you are doing analysis, don't bother about the answer कि जल्दी से आंसर मिल जाए और मैं मूव कर जाऊं. Not at all. आप कभी कुछ नहीं सीखेंगे इसमें. The next question is regarding the NPCI. National Payment Corporation of India helps in promoting financial inclusion in the country. NPCI has launched RuPay Pay. When I was doing the mindset making, तो मैंने आपको NPCI या किसी भी बॉडी के बारे में कैसे एनालिसिस किया जाता है ये मैंने आपको बताया था. दूसरी चीज़, डिमोनेटाइजेशन का दौर चल रहा था 2018 में. आप देखेंगे तो उन्होंने 3-4 क्वेश्चन आपसे उसी रिलेटेड पूछे, क्योंकि उस टाइम NPCI के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप या कहें कि उनके ऊपर ये दायित्व दिया गया था कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाएं. फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसा नहीं है कि उनको जाके लोगों को इंश्योरेंस के बारे में बताना है, नॉट एट ऑल. दे वर सेड कि ओके, पब्लिक में लेस कैश इकोनॉमी के लिए अवेयरनेस कैसे आए, उनके पास सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं. सो कम अप विद आइडियाज ऑफ दैट. दिस इज द एनालिसिस फ्रॉम दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट? 2018 again, they ask Bhim app while a chip in debit card. Bhim app. So when such new initiatives kind of questions comes into your PYQ, what you can learn from that? यहाँ राइट साइड में लिख लीजिए आप लोग. आपको ये नहीं जल्दी से कर लेना चाहिए कि मुझे UPI, भीम UPI का क्या था क्या नहीं था ये मैं याद कर लूँ, क्योंकि UPSC is not gonna repeat the question. Am I clear or not? तो उस केस में आपको ये देखना चाहिए कि किस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया, उस टाइम कंटेम्पररी में क्या चल रहा था, और ये जो डिटेल्स इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर रखे हैं, क्या मैं इन सारी डिटेल्स को किसी नए इनिशिएटिव के लिए याद करूं? ध्यान से सुनिए इस चीज को. या फिर इस क्वेश्चन में इन्होंने जो जो स्पेसिफिक पॉइंट्स यूज किए हैं और इस टाइप का, लेट से हमने कहा कि विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए आरबीआई केम अप विद सम न्यू इनिशिएटिव, तो इस क्वेश्चन को देखकर उस इनिशिएटिव के बारे में क्या क्या आपको पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, ये आपको एनालिसिस करते टाइम हेल्प मिलती है.
ठीक है, आपको ये समझने का मौका मिलता है कि if UPSC framed questions like this, then how they think actually, how the question paper is being set and what is the mentality behind these questions. Am I clear? एनालिसिस समझ आ रहा है, PYQs का एनालिसिस. अब देखिए मैक्सिमम एस्पिरेंट इस टाइप के क्वेश्चंस में गलती पता क्या करते हैं, एक तो वो इन सब का रट्टा लगाएंगे, पहली गलती. दूसरी गलती, जैसे उन्होंने देखा कि यार देखो भीम ऐप जब लॉन्च किया गया था तो उन्होंने इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था. ये सबसे बड़ा ब्लंडर है आपको. इसलिए अभी कोई नया ऐप लॉन्च किया है किसी मिनिस्ट्री ने या किसी ने, ये ऐप वो ऐप, तो आप देखेंगे आपकी मंथली मैगजीन में एक अलग से पूरी लिस्ट बनी रहती है उसकी. यही आपको उपेंद्र सर जैसे माइंडसेट मेकर्स की जरूरत पड़ती है. What I will suggest here कि भैया ये दौर था डिमोनेटाइजेशन का, ईयर देख लो 2018, एंड वहां पर ये यूपीआई भीम ऐप ये सब ऐसे नए नए सिगूफे लग रहे थे लोगों को, एंड गवर्नमेंट वर हार्डली ट्राइंग दैट पीपल शुड फॉलो दिस. आज आपको आप रेडी पटरी पे देखेंगे, किसी पर भी देखेंगे, सब लोगों के पास स्कैनर है. उस टाइम ये सपनों से परे की दुनिया थी दोस्त, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं. ये बहुत 200 साल पहले की बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है. तो उस कंटेम्पररी इश्यूज के लिए ये पॉइंट्स बहुत हाईलाइटेड या बहुत हॉट टॉपिक्स में थे, इसलिए इस टाइप के स्टेटमेंट्स फ्रेम किए गए. अब यहां पर लिख लीजिएगा, अब अगर मंथली मैगजीन में मुझे किसी ऐप के बारे में या बहुत पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस दिया जाएगा, मैं उसको याद ही नहीं करूंगा. Until unless that is not very path breaking. This was path breaking in that scenario. You got my point or not? Analysis of PYQs समझ में आ रहा है? आगे बढ़ूं अभी. अब जैसे बिटकॉइन के बारे में, they ask UPSC CDS 2017. It is a decentralized virtual currency. It is generated through complex computer software. अब दो में तो कोई अंधा भी होगा वो भी मार देगा कि यार बिटकॉइंस हैं वो तो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही जनरेट हो रहे हैं. तो 2 तो मुझे चाहिए. जब 2 चाहिए तो पहला ऑप्शन मेरा गया, ठीक है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इट एज अ लीगल टेंडर. अब देखो फिर से आ गया लीगल टेंडर. ये होता है एनालिसिस मेरे बच्चे. अब दिस क्वेश्चन दे आस्क इन 2017 in the CDS. In the 2018 they asked question about the only term legal tender. तो अगर आपने 2017 का एनालिसिस CDS का और UPSC के क्वेश्चन इसके CSE का किया होता तो आपको ये 1 सेकंड में आंसर मिलता. लेकिन हम लोग किसकी आदत में हैं, बस सर इसका आंसर बता दो और हम आगे बढ़ जाएं. और हम इसको बोलते भी हैं बहुत अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस और मैराथन और ये सब यूट्यूब पे घंटे घंटे का वीडियो हम बैठ के देखते रहते हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग दोस्त, बट आई एम ओनली सेइंग दैट यूपीएससी एग्जाम इज नॉट लाइक दैट कि यू नो द आंसर एंड देन यू विल डू एवरीथिंग. नॉट एट ऑल. यू हैव टू लर्न हाउ टू एक्सट्रैक्ट द आंसर, हाउ टू ग्रैब एनीथिंग. That is the major part of this exam process. अब इस क्वेश्चन में भी सेम थिंग आई कैन एक्सप्लेन फॉर यू. तो आई गेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे करना है. एम आई क्लियर और नॉट? तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं. मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू, ऑल दो मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं जिनके थ्रू मैं और भी चीज़ें आपके साथ बात कर सकता हूँ इन द सेम मैनर. तो मैंने कुछ चीज़ें जीएस माइंडसेट मेकिंग जब कर रहा था तब बताया और कुछ हिंट्स आपको आज किए हैं, ठीक है. एक लेक्चर हम और रखेंगे जिसमें हम बजट के और इन सब के क्वेश्चंस को मिलाकर फिर से PYQs लेकर आएंगे. बट प्रोसेस क्या होगा देखिए, पहले आपने एक प्रोसेस समझिए इस माइंडसेट मेकर सीरीज का. पहले मैंने आपको एक टास्क दिया कि एक जनरल रीडिंग लगाइए आप अपने क्लास नोट्स की फॉर द लेट्स से चैप्टर मनी, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी. आपने लगाया क्वेश्चन या पढ़ाई करते टाइम मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस PYQs को देखकर कैसे अपने को आगे बढ़ते जाना है. थर्ड स्टेप पर मैं लेकर आया PYQs एनालिसिस.
अब ये क्या हो गया, PYQs पहला आपने किया रीडिंग द चैप्टर स्टेप 1, सेकेंड स्टेप इज सीइंग द PYQs एंड थर्ड स्टेप इज एनालाइजिंग PYQs। और आप कोरा पर जाएंगे, ये मैं आज से नहीं कह रहा हूं, ये लगातार मैं बच्चों को मेंटरिंग में भी बोलता हूं, चाहे इनसाइट्स IAS हो, चाहे मेरे खुद के कॉल्स हो, मैं हर जगह बच्चों को ये प्रोसीजर बताता हूं कि किसी भी UPSC में किसी भी टॉपिक को तैयार करने का तरीका क्या है। पहले आप प्लेनली चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके PYQs देखिए, केवल देखिए और ये देखिए कि अच्छा यार, मैंने तो सोचा था ये लीगल वीगल नहीं आता है, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन है। मैंने सोचा था ऐप के बारे में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है। अब आप फिर से अपने नोट्स को रिवाइज किया, आपने थोड़ा सा फिर से रिवाइज किया, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना स्टार्ट कीजिए। और एनालिसिस कैसे करना है, जो मैंने अभी आपको सिखाया। क्लियर? PYQs एनालिसिस करने के बाद द फाइनल स्टेप इज कंसोलिडेशन ऑफ योर रीडिंग द चैप्टर, सीइंग द PYQ, एनालाइजिंग द PYQ। अब आपका दिमाग इतना सेटल हो जाना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर से मुझे क्या याद रखना है और क्या छोड़ना है। एक नोट्स में अगर 72 पेज हैं तो जरूरी नहीं है मुझे सब कुछ याद रखना है, और एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस में लेट्स से देयर आर 11 पॉइंट्स गिवन इन द नोट्स, वी कैन नॉट रिमेंबर ऑल दोज 11 पॉइंट्स। वी आफ्टर एनालाइजिंग PYQs वी हैव टू लर्न just having 2-3 major issues, how can click my right option. Am I clear or not? So yes, this was the like I was trying to do the PYQs analysis for you. The rest is up to you how you take it. Will make just wait a minute please. In the next lecture I'll start what the point is, बजट वाला जो PYQs है आप एनालाइज कीजिए। अगर कोई डाउट आएगा then do let me know about that. In the next lecture we will do external sector, that is balance of payments वाला chapter, right? चलो, good luck.